Lord laid in my heart to share about an important subject, how to be ready for the rapture. प्रभु ने मेरे हृदय में एक मुख्य विषय डाला है कि हम कैसे प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं. We know all the signs all over the world show that the Lord is coming surely very soon. पूरे संसार में होने वाले चिन्ह इस बात को दिखाते हैं कि हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है. The Bible is very clear there is going to be a third world war. बाइबल बड़ी स्पष्टता से बताती है कि एक तीसरा विश्व युद्ध होगा. So many saints say that in the book of Ezekiel, chapter 21, verse 27, speaks about 3 world wars. बहुत सारे संत कहते हैं कि यहेजकेल 21 अध्याय उसके 27 वचन में बहुत सारे युद्धों के बारे में लिखा है. I will overturn it. 3 times that overturn, many saints say that 3 overturns speak about the 3 world wars. मैं उसको उलट दूंगा. ये जो 3 बार उलट दूंगा लिखा है, ये 3 विश्व युद्धों को दिखाता है. ऐसे बहुत सारे पवित्र संत कहते हैं. And it shall be no more. That means the world war will be no more. उसके बाद वो नहीं होगा, अर्थात उसके बाद विश्व युद्ध नहीं होगा. Until he comes, whose right it is, that is the Lord Jesus coming for the millennial reign. जब तक वो ना आए, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज्य के लिए आएगा. It is sad, but it is true. The Bible also proves there is going to be a nuclear war. ये सच है और ये दुख की बात भी है, परंतु बाइबल इसे साबित करके दिखाती है कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा. Almost all of us we know, we heard at least, when nuclear bombs are dropped, people will not be able to fall down and die, while standing there itself, just in a split second they will melt away without having a chance to fall down. जब न्यूक्लियर बम गिरेंगे तब लोग गिरकर मरेंगे, ऐसा नहीं, लोग खड़े खड़े ही गल जाएंगे. While standing itself, the body will melt, the ice will melt, and the person will die. खड़े खड़े ही वो सारा शरीर पिघल जाएगा, उसकी आंखें पिघल जाएंगी और वो व्यक्ति मर जाएगा. That we read in Sereis, chapter 14, verse 12. उसके बारे में हम ज़करिया 14 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं. All the word of God is being fulfilled. The stage is ready for the Lord to appear. परमेश्वर के सारे वचन पूरे हो रहे हैं. अभी मंच पूरा तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए. Where do we read about satellite television? कहाँ पर हम सैटेलाइट टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं? We read in Revelation chapter 11, in the streets of Jerusalem, 2 dead bodies will be lying. हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़ते हैं, यरूशलेम की सड़कों में 2 मृत शरीर पड़े रहेंगे. While the 2 dead bodies are lying in the street of Jerusalem, the whole world will be watching it. वो ऐसे चुनौती दे के कह रहे थे कि यरूशलेम की सड़कों में 2 मृत शरीर पड़े रहेंगे और कैसे पूरा संसार उन्हें देखेगा. Before the satellite television came, people who were against the Bible told this verse is wrong. सैटेलाइट टेलीविजन आने से पहले जो लोग बाइबल के विरोधी हैं, उन्होंने कहा कि ये वचन गलत है. They were challenging. How can 2 dead bodies lying in a street in Jerusalem? How can the whole world can see that? वो चुनौती दे रहे थे कि कैसे यरूशलेम की सड़कों में पड़े हुए 2 मृत शरीरों को सारा संसार देख सकता है. It was 2000 years ago written. How true now we know. ये 2000 वर्ष पहले लिखा गया, अभी वर्तमान में ये कितना सच है. We read about that in Revelation chapter 11 verse 8 and 9. इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में पढ़ते हैं. It is remaining in the streets of Jerusalem. All the nations all over the world they will be watching it. यरूशलेम की सड़कों में वो पड़े रहेंगे और पूरा संसार उन्हें देखेगा.
Television could not have done it. Only satellite television could do that. टेलीविजन ये नहीं कर सकता, केवल सैटेलाइट टेलीविजन ये कर सकता। Beloved ones, every word that is written in the Word of God, how true it is. प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ हर एक वचन वो कितना सच है। I will speak then latter days, modern times, how the modern motor cars will be there and they will be jostling or they hitting each other and accidents taking place. Bible speaks about. बाइबल इसके बारे में भी कहती है कि अंतिम दिनों में कैसी आधुनिक कारें चलेंगी, वो एक दूसरे से टकराती हुई चलेंगी। Read about the modern motor cars in the book of Nahum, chapter 2, verse 4. आधुनिक कारों के बारे में नहूम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ते हैं। Like lightning. वह बिजली के समान भागती हैं। They shall run. English is correct. And they shall jostle one against another in broad ways. बड़े मार्गों में वो एक दूसरे से टकराती हुई चलेंगी। Anyway, my subject is not to mention all those matters. My subject is to show how the coming of the Lord is so soon and how we need to be prepared for that day. इन सारी बातों के विषय में बताना वो मेरा विषय नहीं है, परंतु कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है और हमने कैसे उसके लिए तैयार होना है, मेरा विषय वो है। Let me ask you, dear child of God, Jesus may come while I am preaching. Are you ready? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं प्रचार करने के समय ही यीशु आ सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? The other day I asked a child of God, are you ready? And she replied, I am trying to be ready. पिछले दिन मैंने एक परमेश्वर के बच्चे से पूछा, क्या आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं? उसने कहा, मैं तैयार हो रही हूँ। I told her, if you are trying to be ready, you will never be ready. मैंने उनसे कहा, यदि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रही हैं, तो आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगी। How many of you are trying to be ready? आप में से कितने प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए कोशिश कर रहे हैं? If you are trying to be ready, even if one day you become ready, when you go, you will tell the Lord, Lord, because of my cleverness, I came here. यदि आप तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन आप तैयार हो भी गए और चले गए, तो वहाँ जाके आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी, मैं अपनी चतुराई से यहाँ पर आ गया। You cannot get ready. The Bible says, be ready. आप अपने आप तैयार नहीं हो सकते, बाइबल कहती है तैयार रहो। Jesus told, be ye also ready. यीशु ने कहा, तुम भी तैयार रहो। We be ready. हम कैसे तैयार हो सकते हैं? When the Lord told, be ready, when He gives the commandment, unlike man, along with that, He gives the grace to be ready also. जब प्रभु ने कहा कि तुम तैयार रहो, जब प्रभु कोई आज्ञा देते हैं, मनुष्य की तरह नहीं, परंतु उस आज्ञा के साथ अनुग्रह भी रहता है। Unlike man commanding, God commanding is different. जैसे मनुष्य आज्ञा देता है, वैसा परमेश्वर नहीं देते। परमेश्वर की आज्ञा देने में एक अंतर है। God says, be holy as I am holy, while giving the commandment, He gives the holiness also. जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तो प्रभु उस आज्ञा के साथ वो पवित्रताई भी देते हैं। Listen, dear children of God, when God gives a commandment, along with that, to obey the commandment, God gives grace also. सब परमेश्वर के प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं, तो उसका आज्ञा पालन करने के लिए उसके साथ प्रभु अनुग्रह भी देते हैं। What should we do to be ready always for the rapture? हमेशा आगमन के लिए तैयार रहने के लिए हमें क्या करना है? If you look to your own life, you will never be ready. आप अपने स्वयं के जीवन को देखने से आप कभी भी तैयार नहीं होंगे। You will always find some backsliding, some drawback, some mistakes, some failures, some area where we grieve the heart of God. हम हमेशा अपने जीवन के किसी न किसी पहलू में कोई न कोई पाप, भूल चूक, गलती, कमियां, असफलताएं पाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर का हृदय शोकित होता है। But what does the Bible say? Looking unto Jesus. परंतु बाइबल क्या कहती है? यीशु की ओर ताकते हुए। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को देखते हुए You will only see you are rotten, but if you look unto him, they that looked unto him were lightened. Their faces were not ashamed. आप अपने आप को देखने से आप बहुत अभागी अवस्था में होंगे, परंतु आप यीशु की ओर देखेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। When I was a small boy, my elder brother was teaching me cycling. जब मैं छोटा लड़का था तब मेरा बड़ा भाई मुझे साइकिल चलाना सिखाता था। I was trembling looking at the handles and looking at the wheel. और जब मैं छोटा लड़का था मेरा बड़ा भाई मुझे साइकिल चलाना सिखाता था। He smacked and told, don't look that, look forward. उसने मेरे को थपकी देके कहा, उनको मत देखो परंतु आगे की ओर। Every time I looked down, he will be smacking. जब कभी मैं नीचे देखने लगता था वो मुझे एक थपकी मार देते थे। Look forward, look forward. आगे की ओर देखो, आगे की ओर देखो। I struggled to look forward, then I see the wheel changing there, then I look there. मैं आगे देखने की कोशिश करता था परंतु पहिए को घूमते हुए देखकर मैं नीचे देखने लगता था। I knew whenever I was looking to the bicycle, it would be going either here, there, not straight forward. जब कभी मैं अपनी बाइसाइकिल को देखता था मेरी बाइसाइकिल इधर उधर जाने लगती थी, वो सीधी नहीं जाती थी। Our spiritual life also is like that. हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा है। If you look at Jesus, you will not be ashamed. यदि आप यीशु की ओर देखेंगे तो आप लज्जित नहीं होंगे। Jesus is the light. यीशु मसीह ज्योति है। If you look at the light, यदि आप ज्योति की ओर देखेंगे, if you face the light, यदि आप ज्योति की ओर अपना चेहरा करेंगे, your shadow will be behind. It will never be before you. आपकी जो परछाई है वो आपके पीछे पड़ेगी, आपके आगे नहीं आएगी। So if we look at Jesus, our drawbacks, our failures will not be in front of us. It will be behind. यदि हम यीशु की ओर देखेंगे तो हमारी गलती कमियां वो हमारे आगे नहीं रहेंगी, वो हमारे पीछे हो जाएंगी। The first thing that we have to believe is that by God's grace, He will keep me ready when He comes. पहली बात जिस पर हमने विश्वास करना है वो ये है कि जब प्रभु आएगा तब वो अपने अनुग्रह से हमें तैयार करके रखेगा। Many children of God, the mistake they do is they always look at their life and get discouraged. बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन में क्या गलती करते हैं, वो अपने जीवन को देखते हैं और निराश हो जाते हैं। Therefore, God also is not able to do anything deep in their life. इसलिए परमेश्वर भी उनके जीवन में कुछ गहराई से कर नहीं पाते। Really, the world is heading to a great disaster. सच में सारा संसार एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहा है। So surely the Lord has called us. Bible says we are not appointed for the wrath, but for final salvation. निश्चय परमेश्वर ने हमें बुलाया है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु अंतिम उद्धार के लिए ठहराया है। Read 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. पहला थिस्सलुनीकियों 5:9। There is, beloved ones, we have an appointment with God. प्रियजनों, परमेश्वर के साथ हमारा एक मिलने का समय है। We are not appointed unto wrath or appointed for the tribulation after the coming of the Lord. हम क्रोध के लिए नहीं, ना ही प्रभु के आगमन के पश्चात होने वाले क्लेश के समय के लिए ठहराई गई हैं। God has appointed us to obtain the salvation, the final salvation when He comes. परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अंतिम उद्धार को प्राप्त करें। We are saved by the grace of God. हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। Those who are saved by the grace of God, lift up the hands to praise God. जितने लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया, हाथों को उठा के तारीफ करेंगे। The same way, when Jesus comes and when we go there at the mid sky, we will say, by the grace of God, I am saved also now. जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम मध्य आकाश में उनके पास उठा लिए जाएंगे, तब हम वहाँ कहेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैंने इस अंतिम उद्धार को पाया है। The rapture is called the final salvation. जो प्रभु का आगमन है वो अंतिम उद्धार करके कहा गया है। Suppose Jesus came now. मान लीजिए कि प्रभु यीशु अभी आ जाते हैं। All caught up and met the Lord in the air. सब उठा लिए गए और प्रभु से हवा में मिले। Can you guess what will be the first words
you will tell Jesus when you see him in the mid-sky? क्या बता सकते हैं कि मध्य आकाश में अब जब यीशु को पहली बार देखेंगे तो आपके मुंह से पहले शब्द क्या निकलेंगे? Yes, what are you going to say first when you see Jesus? जब पहली बार आप यीशु को देखेंगे तो सोचकर बताएं कि आप कौन से शब्दों को कहेंगे? You will say, thank you, Jesus. I never thought I will be able to come here. आप सबसे पहले कहेंगे, प्रभु जी धन्यवाद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। Maybe some of us will cry with joy. शायद हम में से कई खुशी के आंसू बहाएंगे। Maybe some of us will go and fall at the feet of Jesus. शायद हम में से कई यीशु के पांव पर जाकर गिर जाएंगे। One day I had a vision about the rapture. एक दिन मुझे आगमन के बारे में एक दर्शन मिला। It was many years ago. For me it is so crystal clear like last minute. चाहे बहुत वर्ष पहले मैंने वो दर्शन देखा था, परंतु वो दर्शन अभी भी मेरे हृदय में बिल्कुल साफ है। It was early morning, just a little before 4 a.m. वो बहुत सुबह का समय था, 4 बजे से पहले का कुछ समय रहा होगा। In my spirit I knew Jesus is going to come very soon. मैंने अपनी आत्मा में जान लिया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। I thought I will go around and tell the believers, be ready, Jesus is coming soon. मैंने सोचा मैं जाकर सारे विश्वासियों को बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। I couldn't get up before that the Lord came. मैं उठ नहीं पाया, उससे पहले ही प्रभु आ गए। From all over the world, saints like silver wings, they were all flying to the mid-sky. पूरे संसार से चांदी के पंखों के समान बहुत सारे संत लोग उड़ के हवा में प्रभु को मिल रहे थे। Particularly, I was very happy to see so many saints from Russia and China. विशेष करके बहुत सारे संतों को रशिया और चाइना से देखकर मैं बहुत खुश हुआ। By the way, when we get the glorious body, you don't need to ask, what is your name? Are you from Manasseh? Are you coming from Adaya? And how is your age? And how you don't need to ask anything. In the glorious body, you can discern everything. जब हमें महिमा में शरीर मिलेगा, हमें ये पूछने की जरूरत नहीं कि आप ब्रदर हैं, कि आप अड्यार से आ रहे हैं। वो महिमा में शरीर पाने से हम अपने आप ही सब कुछ जान लेंगे। Pastor Paul and so many other saints, some of them I have never seen also, I could discern they are there. पास्टर पॉल और दूसरे संतों को मैंने कभी देखा नहीं, परंतु मैंने आत्मा में परख लिया कि वो सब वहाँ पर हैं। It appeared like a bright early morning in heaven. वो स्वर्ग में भोर सुबह बहुत ही उज्जवल होके दिखाई दे रहा था। So I went to the Lord and asked, Lord, is this a dream or real? मैं प्रभु के पास गया और प्रभु से पूछा, प्रभु जी क्या ये स्वप्न है, क्या ये सच में हो रही बात है? The Lord told me, it is real. प्रभु ने मुझसे कहा कि ये बात वास्तव में हो रही है। Then there was an announcement in the mid sky. और फिर मध्य आकाश में एक आकाशवाणी हुई। There is going to be a victor's march in the mid sky. कि अभी स्वर्ग में सब जयवंत लोग चलेंगे। Like the people, those who are, those who got victory, won the elections, the party will take out the procession. जैसे किसी पार्टी में कोई इलेक्शन जीतने से जो पार्टी है पूरी फिर जुलूस निकालती है। I was very happy to know that there was going to be a procession. मैं बहुत ही खुश हो गया ये सुनकर कि एक बड़ा जयवंतों का जुलूस निकलने वाला है। I asked the Lord, in the procession, can I go first? फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी क्या इस जुलूस में मैं सबसे आगे चलूं? And the Lord smiled at me. तब प्रभु मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। Jesus is so wise. He didn't say yes or no. यीशु मसीह बहुत ही बुद्धिमान है, उन्होंने हाँ या नहीं ऐसा करके नहीं कहा। He smiled and told, those who came first will go first. यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो पहले आए वो पहले जाएंगे। And the procession started. उसके बाद वो जुलूस आरंभ हो गया। Guess who was in the front? सोचकर देखें सबसे आगे कौन था? Who went first from the dead, resurrected? मरे हुए में से जी उठने में सबसे पहले कौन जी उठा? Jesus. यीशु मसीह। I was right in the last with all the other saints. बाकी सारे संतों के साथ मैं सबसे पीछे था। Because we went last in the rapture. क्योंकि हम आगमन में सबसे अंत में उठाए गए। I had never seen a procession like that. It's such a glorious procession. पहले कभी भी मैंने इस प्रकार का जुलूस नहीं देखा था।
वो इतना महिमामय जुलूस था। Then I had to add one more thing. मुझे इसके साथ एक और बात भी जोड़नी है। Then came the saddest moment. उसके बाद सबसे दुख का लम्हा आया। Guess what was that? सोचकर बताएं वो क्या होगा। Guess what was that? सोचकर बताएं वो क्या था। I opened my eyes and so I am in this world. मैंने अपनी आंखें खोल दी और देखा कि अभी तक मैं इस संसार में हूँ। I really wanted to close my eyes once again, if I could be there only. मैं फिर से अपनी आंखें बंद करना चाहता था कि हो सके तो मैं वापस वहाँ चला जाऊँ। I was sad that it was only a vision. मैं बहुत ही दुखी हो गया सोचकर कि ये तो एक दर्शन ही है। Immediately I remembered what Jesus told me. परंतु मुझे याद है कि तुरंत यीशु ने क्या कहा। I asked the Lord, Lord, is it a dream or real? Jesus told it's real. मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी ये स्वप्न है कि सच में हो रहा है? उन्होंने कहा ये एक वास्तविक बात है। Greatly encouraged my spirit, it's going to be very real. इससे मेरे आत्मा में बहुत उत्साहन हुआ कि ये बात सच में होगी। One day it is going to be real. एक दिन ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी। Perhaps today. शायद वो दिन आज का दिन होगा। Don't say when it could be, but it's going to be real. मैं नहीं कह सकता कि ये कब होगा, परंतु ये बात बिल्कुल सच है। Now our burden, our ministry is to encourage and prepare people for that soon coming of the Lord. अभी हमारा बोझ, हमारी सेवकाई ये है कि हम लोगों को उत्साहित करके प्रभु यीशु के शीघ्र आगमन के लिए उनको तैयार करें। Be a child of God. If you cannot be ready for the rapture, the Lord would never have commanded, be ye also ready. परमेश्वर के प्यारे बच्चे, यदि आप आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाते तो प्रभु कभी भी आपको ये आज्ञा ना देते कि मेरे आगमन के लिए तैयार रहो। Some of you are doubting whether I can be ready for the rapture. That way you are grieving the heart of God. आप में से कई शक करते हैं कि क्या मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाऊंगा कि नहीं। ऐसा सोचकर आप प्रभु के हृदय को दुखी कर रहे हैं। My holiness and consecration, because I am in the faith of I cannot be ready for the rapture. क्योंकि मैं विश्वास कर में हूँ और अपनी पवित्रताई और अपने मखसूसियत के कार्य द्वारा मैं प्रभु के लिए आगमन के लिए तैयार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। I am saved by the grace of प्रभु के अनुग्रह से ही मेरा उद्धार हुआ। the Holy Spirit, by the grace of God. मैंने प्रभु के अनुग्रह से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। I took baptism by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैंने बपतिस्मा लिया। It is the grace of God that will prepare. और प्रभु का अनुग्रह ही हमें उसके आगमन के लिए तैयार करेगा। When you believe the grace of God will prepare you for the rapture, जब आप विश्वास करेंगे कि प्रभु का अनुग्रह मुझे उसके आगमन के लिए तैयार करे, God will start a deep work of cleansing in life. तब परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रताई के गहरे काम को आरंभ कर देगा। Anything you will think wrong or speak wrong or do wrong, Holy Spirit immediately will convict you. आप कुछ भी गलत बोलने से, कुछ भी गलत करने से, कुछ भी गलत सोचने से पवित्र आत्मा तुरंत आपको बोझिल करेगा। There is a verse in the Bible, the peace of God shall rule your heart. बाइबल में एक वचन है कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय पर राज्य करेगी। Say you are in a football match. मान लीजिए आप एक फुटबॉल के मैच में हैं। You are playing in the football match. आप फुटबॉल के मैच में खेल रहे हैं। When you do something foul, immediately referee will whistle. आप कोई फाउल मारने से तुरंत जो रेफरी है वो सीटी मारेगा। When referee will be whistling, then play is stopped. जब रेफरी विसल मारेगा तब वो जो खेल है वो रुक जाएगा। There was a foul play. कि ये एक फाउल प्ले है। Like that, Holy Spirit will be the referee in our heart. वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रेफरी के समान रहेगा। When there is a foul play, you think something wrong, do something wrong, speak wrong, immediately the referee will be whistling. जब कुछ भी आप फाउल मारने से, कुछ गलत बोलने से, सोचने से तुरंत जो रेफरी है पवित्र आत्मा वो सीटी मारेगा। When we examine our heart and repent again, the play starts. जब हम अपने हृदय को जांच के अपने आप को ठीक कर लेंगे, फिर से वो खेल आरंभ हो जाएगा। Like in the sports, spiritually, that is what God is doing in our life. जैसे खेलों में वैसी आत्मिक रूप से प्रभु भी हमारे जीवन में कर रहे हैं। Beloved ones, I want to tell you in the name of the Lord, it is the will of God for you to go at the rapture. प्रिय जनों, प्रभु की इच्छा से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रभु की इच्छा है कि आप प्रभु के आगमन में उठाए जाएं। For a long time,
The devil had been putting in your mind, I will not be ready, I won't be ready, I won't be ready. एक लंबे समय से शैतान आपके मन में डाल रहा है कि मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाऊंगा। The devil is a liar and father of lies. शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। How did we get saved? हमने कैसे उद्धार पाया? The Bible says we believed in our heart and confessed the Lord Jesus with our mouth and we got saved. बाइबल कहती है हमने अपने हृदय में विश्वास किया और अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया और हमने उद्धार पाया। We have to believe that by grace I will go at the rapture and confess that, and then final salvation, rapture, God will make us ready. और वैसे हमने अपने हृदय में विश्वास करना है कि प्रभु के आगमन के समय प्रभु के अनुग्रह से मैं उठा लिया जाऊंगा और वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में करेंगे। In Proverbs chapter 16 verse 1 says, the preparation of the heart and the answer of the tongue is from the Lord. Please read. नीति वचन 16 के 1 में लिखा है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। The preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. मन की युक्ति मनुष्य के हृदय में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। In other words, the preparation of the heart for the coming of the Lord is from the Lord. दूसरे शब्दों में प्रभु के आगमन के लिए हमारे हृदय की तैयारी वो परमेश्वर की ओर से है। The answer of the tongue also from the Lord. और मुंह का कहना भी यहोवा की ओर से होता है। The answer of the tongue. और उस जीव का उत्तर क्या है? Our tongue saying, "Come, Lord Jesus." हमारा मुंह कहता है, हे प्रभु यीशु मसीह आ जाओ। So the preparation of our heart is from the Lord, and also our saying, confessing, "Come, Lord Jesus," that also is from the Lord. ऐसी हमारे हृदय की तैयारी वो परमेश्वर की ओर से है, और हम अपने मुंह से जो कहते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ जाओ, वो भी प्रभु की ओर से है। In these days, beloved ones, God is preparing His church all over the world. ये जनों, इन दिनों में प्रभु पूरे संसार से अपने लोगों को अपने आगमन के लिए तैयार कर रहा है। In some of your lives, the referee is whistling. आपके कईयों के जीवन में जो रेफरी है वो सीटी मार रहा है। One day in America, one believer had a vision, dream. एक दिन अमेरिका में एक विश्वासी को ऐसा स्वप्न दर्शन मिला। Jesus came and the rapture he was going up. उसने देखा प्रभु के आगमन के समय वो ऊपर जा रहा है, But halfway through something was pulling him down. When he looked, to his horror he found a television set is tied to his feet and it was pulling him down to the earth. परंतु बीच आकाश में जाने के समय उसने महसूस किया नीचे की ओर उसे कुछ खींच रहा है। उसने नीचे झुककर देखने से एक टेलीविजन की तार उसे नीचे की ओर खींच रही थी। Maybe the Holy Spirit, the referee, is whistling. शायद पवित्र आत्मा जो रेफरी है वो आपके जीवन में विसल मार रहा होगा। Don't miss the rapture. आगमन में हाथ छोड़े ना जाएं। The grace of God will definitely prepare you and me. प्रभु का अनुग्रह निश्चय ही आपको भी और मुझे भी तैयार करेगा। If you look at your life, you will never be ready. यदि आप अपने जीवन को देखने से आप कभी भी तैयार नहीं हो पाएंगे। If you look at the light, look at Him, then your shadow will be behind you. यदि आप ज्योति की ओर देखेंगे, उसकी ओर देखेंगे, तब आपकी परछाई आपके पीछे हो जाएगी। Easily, God will prepare your heart and life for the rapture. यदि आप उसकी ओर देखेंगे तो प्रभु बड़ी सरलता से आपको और आपके हृदय को उसके आगमन के लिए तैयार करेंगे। In Psalm 36 verse 5 says, "Thy faithfulness reacheth unto the clouds." भजन 36 के 5 में लिखा है, तेरी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंचती है। Jesus is going to come in the cloud. यीशु मसीह बादलों में आएंगे। We are going to go in the cloud. और हम भी उसको उड़ के बादलों में मिलेंगे। How long God is going to be faithful to us, beloved ones? ये जनों, कब तक हमारा परमेश्वर हमारे प्रति सच्चा या विश्वास योग्य बना रहेगा? Till we reach the clouds, the Lord is going to be faithful to us. जब तक हम बादलों में उसे ना मिले तब तक प्रभु हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। His faithfulness changeth not. उसकी विश्वास योग्यता कभी बदलती नहीं। There are so many churches, they are teaching when Jesus comes, all the Christians will go. बहुत सारे चर्च ऐसी हैं जो सिखाती हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे सारे मसीही लोग उठा लिए जाएंगे। One reason the Lord brought you and me to this fellowship, definitely
It's our calling is to be raptured. एक कारण जो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे इस कलीसिया में आए, निश्चय ही आगमन में उठा लिए जाने के लिए प्रभु हमें लेकर आए। Every day you must say, by the grace of God, I will go at the rapture. हर दिन आप कहना चाहिए, प्रभु के अनुग्रह से मैं आगमन में उठा लिया जाऊंगा। Then you will find the grace of God is ruling or dominating your life. तब आप पाएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर पूरा प्रभुता करेगा। Again I tell you, if you look at you, you will be thoroughly discouraged. फिर मैं आपसे कहता हूँ, याद यदि आप अपनी ओर देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। If you look at him, you will be walking in the light. यदि आप उसकी ओर देखेंगे तो ज्योति में चलेंगे। If you are hiding any sin, unconfessed sin, that shows you are not walking in the light. यदि आपके कोई जीवन में पाप है जिनका अभी तक आपने इकरार नहीं किया, इसका अर्थ है कि आप ज्योति में नहीं चल रहे। Very soon the trumpet is going to sound. बहुत जल्दी नरसिंह का फूंका जाएगा। Maybe on radio there will be an announcement. शायद रेडियो में ऐसी घोषणा होगी। Suddenly some people are missing. अचानक से बहुत सारे लोग वो गुम हो गए। Nuclear war started. न्यूक्लियर वॉर आरंभ हो गया है। Fanatic Pentecostal people are missing. कुछ कट्टरवादी जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं वो अभी लापता हैं। There will be so many things happening in the world which is beyond my knowledge. और फिर संसार में बहुत सारी बातें होंगी जो हमारी समझ से भी बिल्कुल बाहर हैं। But the Lord will prepare His church. परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करेंगे। You are very precious to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। Don't be discouraged. आप निराश ना हो। I don't think we have time to die, but time to fly. मैं सोचता हूँ अभी हमारे लिए मरने के लिए समय नहीं, अभी हमें उड़कर जाने का समय है। The glorious vision the Lord has given is very often coming back to my heart. वो जो महिमा में दर्शन प्रभु ने दिया वो बार बार ही मेरे हृदय में आता है। I trust I will see you also by the grace of God in the mid sky. मैं ये भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि मध्य आकाश में मैं आप सबको भी प्रभु के आगमन के समय देखूंगा। Most encouraging verse in the Bible for me is Jude verse 24. बाइबल में मेरे लिए सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाला वचन है यहूदा की पत्री 24 वचन। Now the important word is that now. जो मुख्य वचन है वो है अब। Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Able to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. When? वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने हमें मगन और निर्दोष करके खड़ा करने के लिए सामर्थी है। कब? Now. अभी। One believer told me, Pastor, even if 6 months the Lord will give, I don't think I can be ready. एक विश्वासी ने मुझसे कहा, पास्टर जी प्रभु मुझे 6 महीने देने से भी मैं आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाऊंगा। Tell me how much time you need to prepare for the rapture. आप मुझे बताएं प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए आपको कितना समय चाहिए? How long you need? आपको कितना समय चाहिए? Tell me when can He make you ready? आप मुझे बताएं कब वो आपको तैयार कर सकता है? Now. अब। If Jesus comes now, यदि यीशु मसीह अभी आने से He is able to present you faultless before the throne of glory with exceeding joy. वो आपको अपने महिमा के सिंहासन के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करने के लिए सामर्थी है। One split second the Lord can prepare you and me. एक अनु लम्हे में ही प्रभु मेरे को और आपको तैयार कर सकते हैं। I'm very sad that word now is missing, not only in Tamil, some other language. मुझे बड़ा दुख है, न केवल तमिल अनुवाद में, कई अनुवादों में जो शब्द अब है वो लिखा नहीं गया है। I want you, beloved ones, to believe this verse today. प्रियजनों, मैं चाहता हूँ कि आज आप इस वचन पर विश्वास करें। Before I close my words, I want you to exercise faith. मैं अपने बातों को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को अभ्यास में लाएं। Open your Bible, Jude verse 24, and lay your hand on that verse 24. अपनी बाइबल को खोलें और यहूदा की पत्री 24 वचन निकालें और अपना हाथ उस वचन पर रखें। You lay the hand there. Laying hand there is a belief that now He is able to present me faultless before the presence of His glory with exceeding joy.
आपने जो उस वचन पर हाथ रखा है उसे आपके विश्वास को दिखाते हैं कि आप विश्वास करते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Anointing is going to come. आपके ऊपर एक अभिषेक आएगा। I believe it. मैं विश्वास करता हूँ। Believe it. मैं विश्वास करता हूँ। Believe it. मैं इस पे विश्वास करता हूँ। Let us all stand up. हम सब खड़े हो जाएं। Devil is put to shame. हम शैतान को लज्जित कर दें। By the grace of God, I will go. प्रभु के अनुग्रह से मैं आगमन में उठाया जाऊंगा। There are thousands of mistakes in my life, मेरे जीवन में हजारों गलतियां हैं, but my God is preparing my heart. परंतु मेरा परमेश्वर मेरे हृदय को तैयार कर रहा है। By His grace, I will go. उसके अनुग्रह से मैं उसके आगमन में जाऊंगा। By His grace, I will go. उसके अनुग्रह से मैं उसके आगमन में जाऊंगा। आपने जो उस वचन पर हाथ रखा है उसे आपके विश्वास को दिखाते हैं कि आप विश्वास करते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Anointing is going to come. आपके ऊपर एक अभिषेक आएगा। I believe it. मैं विश्वास करता हूँ। Believe it. मैं विश्वास करता हूँ। Believe it. मैं इस पे विश्वास करता हूँ। Have a day of being upheld by God's love. Subscribe and press the bell icon below for more biblical creatives. Your subscription and share may bring blessings to many.